بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 70 ہے، جس کا عنوان ہے باب بیانی ان الدین النصیحہ۔ سبق شروع کرنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ یہ گزشتہ سبق کا عنوان اور اس کے نکات ہیں۔ آج کا سبق اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات کے اوپر ہوگا۔ تو سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی قال حدثنا محمد بن عباد المکی قال حدثنا سفیان قال قلت لسہیل ان عمرا حدثنا عن القعقاع عن ابی قال ورجوت ان يسقط عني رجلا قال فقال سمعته من الذي سمعه منه ابي كان صديقا له بالشام ثم حدثنا سفیان عن سہیل عن عطاء بن يزيد عن تمیم الداری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ کس کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کی کتاب کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے ائمہ کے لیے اور عامۃ المسلمین کے لیے۔ اس سند میں کچھ پیچیدگی ہے، اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں۔ سہیل کے والد کا نام ابو صالح ہے جو کنیت سے مشہور ہے۔ سفیان نے سہیل سے کہا کہ میرے اور آپ کے والد ابو صالح کے درمیان ایک واسطہ ہے، قعقاع کا۔ اگر آپ اپنے والد ابو صالح سے براہ راست روایت نقل کر دیں تو قعقاع کا واسطہ ساقط ہو جائے گا، جس سے میری سند آپ کے والد ابو صالح تک عالی ہو جائے گی۔ محدثین کے ہاں واسطے جتنے کم ہوں سند عالی ہو جاتی ہے۔ تو سفیان کے سوال کے جواب میں سہیل نے کہا کہ میرے والد صاحب نے جس استاد سے یہ حدیث سنی ہے میں نے بھی انہی سے سنی ہے۔ یہ کہہ کر سہیل نے مختصر سند بیان کی، لہذا اب درمیان سے قعقاع اور ابو صالح کے دو واسطے ساقط ہو گئے اور سفیان کی سند انتہائی عالی ہو گئی، کیونکہ سہیل عمر کی جگہ پر آ گئے اور انہوں نے براہ راست عطاء بن یزید سے روایت نقل کر دی، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اخیر تک بیان کیا۔ اور سہیل نے یہ وضاحت بھی کی کہ میرے والد صاحب نے جن سے یہ روایت سنی وہ شام میں تھے اور میرے والد صاحب کے دوست تھے جن کا نام عطاء بن یزید ہے۔ جس طرح ان سے میرے والد صاحب نے روایت لی میں نے بھی انہی سے لی، اور انہوں نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ محمد بن عباد المکی صدوق، دوسرے ہیں سفیان بن عیینہ، یہ بھی امام کبیر ہیں، فقیہ ہیں۔ تیسرے ہیں سہیل بن ابی صالح ابو یزید المدنی، یہ بھی صدوق ہے۔ اور چوتھے ہیں عطاء بن یزید اللیثی المدنی، ثقۃ۔ اور 5ویں ہیں صحابی رسول حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ، تمیم بن اوس بن خارجہ الداری۔ یہ پہلے عیسائی تھے پھر مسلمان ہو گئے۔ داری یہ نسبت ہے، اس میں اختلاف ہے کہ یہ نسبت کس وجہ سے ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک دار بن ہانی ان کے والد تھے، انہی کی طرف داری نسبت ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی خصوصیات میں سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جساسہ میں فرمایا حدثنی تمیم الداری، یہ بڑا اعزاز ہے۔ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد شام کی طرف منتقل ہو گئے تھے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ 40 ہجری کے اندر آپ کی وفات ہوئی۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے، اور اس میں سہیل سے مدنی راویوں کا تسلسل ہے اور بقیہ راوی مکی ہیں۔ اور اس سند میں سند کو عالی کرنے کا تذکرہ ہے جس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں۔ کتب ستہ میں جن راویوں کا نام تمیم ہے وہ 10 ہے، اور صحیحین میں تمیم نامی 6 راویوں کا تذکرہ ہے۔ ان 6 کے 6 کا نام یہاں موجود ہے، صاحب الترجمہ اور تمیم بن سلمہ وغیرہ، یہ سب کا تذکرہ یہاں موجود ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے بخاری شریف میں کوئی روایت نقل نہیں کی گئی، صحیح مسلم کے اندر بھی صرف اسی روایت کو نقل کیا گیا ہے، اور یہ مقلین میں سے ہے، اور کتب ستہ میں ان سے صرف 9 احادیث کو نقل کیا جاتا ہے۔ ان تمام روایات کا تذکرہ یہاں موجود ہے۔ یہاں سے ہم اس حدیث کی شرح کو بیان کرتے ہیں۔ اگلے باب سے منہیات کا بیان آئے گا،
अवामिर के सिलसिले की इब्तिदा हदीस जिब्रील से हुई और इंतहा अद्दीन अन्नसीहा पर हो रही है। हदीस जिब्रील में 3 बातें थी, ईमान, इस्लाम और एहसान। उस हदीस के आखिर में इन तीनों के मजमूए को दीन कहा गया था और इस बाब में अद्दीन अन्नसीहा कहा गया, गोया नसीहत ही का नाम दीन है। अगर दोनों बाब का खुलासा निकाला जाए तो कहा जा सकता है कि नसीहत ईमान, इस्लाम और एहसान का मजमुआ है और इन्हीं 3 चीजों का मजमुआ दीन है। मबदा और मुंतहा दोनों का दीन है। मुस्लिम शरीफ की तरतीब का कमाल देखें कि जहां से चले थे फिर वहीं पहुंचे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नसीहत कितना जामे लफ्ज है। इसलिए उलमा ने तसरीह की है कि जिस तरह लफ्ज फलाह दीन और दुनिया दोनों की कामयाबी पर मुश्तमिल है, इसी तरह नसीहत दीन और दुनिया दोनों की खैर खाही पर मुश्तमिल है। इरशाद फरमाया कि अद्दीन अन्नसीहा, यानी दीन का सबसे बड़ा सुतून खैर खाही है। ये जुमला जवामिउल कलीम में से है जिसके अल्फाज मुख्तसर है मगर मानी कसीरा पर मुश्तमिल है। और नसीहा ऐसे कलाम को कहते हैं जिससे सामे की हर किस्म की भलाई का इरादा किया गया हो। पूछा गया कि दीन किसके लिए नसीहत है, तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया लिल्लाह, अल्लाह ताला के लिए खैर खाही है। अल्लाह ताला के लिए खैर खाही दर हकीकत इंसान की अपनी खैर खाही है, क्योंकि इसका नफा खुद इंसान को हासिल होता है। बहरहाल अल्लाह ताला के साथ खैर खाही का मतलब यह है कि अल्लाह ताला जिन सिफात के मुस्तहिक हैं वो सारी की सारी सिफात अल्लाह ताला के साथ मुख्तस माने, इबादत सिर्फ अल्लाह की करे, उसके तमाम अहकामात पर अमल करे, मखलूक से उसकी अदम मुशाबहत का अकीदा रखे, उसको हर किस्म के ऐब से पाक और हर खूबी के साथ मुत्तसिफ माने। और फिर फरमाया कि वली किताब ही, किताबुल्लाह की खैर खाई ये है कि उस पर ईमान लाया जाए, उसके तमाम मुंदरजात और तालीमात को माना जाए और दुनिया के तमाम कवानीन से उसका कानून बालातर माना जाए। इसको अल्लाह ताला का अबदी कलाम तस्लीम किया जाए, हर किस्म की तहरीफ से उसको पाक माना जाए, इसको अल्लाह ताला का मुनज़्ज़ल कलाम माना जाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा मौजज़ा तस्लीम किया जाए। आगे फरमाया वली रसूल ही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैर खाई ये है कि आपको नबी बरहक, नबी आखिरुज़्ज़मान मानकर ईमान लाया जाए, आपकी तालीमात को कबूल किया जाए, उन पर अमल किया जाए, आपको खातमुन नबिय्यीन तस्लीम किया जाए, आपको उम्मत का सबसे बड़ा खैर खा माना जाए और अल्लाह ताला की अमानत को अहसन तरीका से उम्मत तक पहुंचाने वाला माना जाए, आपसे कल्बी मोहब्बत रखी जाए और तमाम रसूलों का सरदार माना जाए। और आगे इरशाद फरमाया कि वली आइम्मतिल मुस्लिमीन, यानी मुसलमानों के बादशाहों की खैर खाही की जाए, जब तक वो इस्लाम पर कायम है उनकी इताअत की जाए, बगावत न की जाए, अगर हो सके तो उनको आखिरत याद दिलाने के लिए नसीहत और वाज किया जाए, उनके लिए गायबाना दुआ की जाए और उनकी हर किस्म की इस्लाह की कोशिश की जाए। वाम्मतिहिम, आम मुसलमानों की खैर खाई ये है कि उनसे झगड़ा ना करें, मुसाफा और सलाम की कोशिश करें, उनकी मदद की भरपूर कोशिश करें, उनकी तालीम और तरबियत का ख्याल रखें, उनके गम में शिरकत करें और उनका हर लिहाज से ताउन करें। अल्लामा उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दीन को नसीहा कहा गया तो एहतमाल है इस चीज का कि मुबालगतन दीन को नसीहा कह दिया, यानी दीन का बड़ा हिस्सा खैर खाई है, जैसे कि हज को अरफा कह दिया जाता है, मतलब यह है कि हज का बड़ा हिस्सा अरफा का वकूफ है। या फिर कलाम अपने जाहिर पर महमूल है और मतलब यह है कि कोई भी अमल उस वक्त तक दीन नहीं बनता जब तक कि उसमें इखलास ना हो। अल्लामा माज़नी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नसीहत नुस्हुन से निकला है, जिसका मतलब होता है किसी चीज को खालिस करना, साफ करना, जैसे कि शहद को साफ किया जाता है। या फिर ये लफ्ज खयाती के माना में है, खयाती यानी कपड़ों को सीना, जैसे खयात सुई से कपड़ों को जोड़ता है, इसी तरह नसीहत इंसानों के ताल्लुकात को जोड़ती है। अल्लामा खताबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये लफ्ज इंतहाई जामे लफ्ज है, इससे पूरे दीन का मकसद वाज़ेह हो जाता है। इस इबारत का खुलासा भी हम जिक्र कर देते हैं कि दीन के अल्लाह के लिए नसीहत होने का मतलब यह है कि अल्लाह की रजा की खातिर उसकी इताअत की जाए, उसके गज़ब से बचा जाए और गुनहगारों को अल्लाह ताला की तरफ वापस लाने की कोशिश की जाए। और किताबुल्लाह के लिए खैर खाई का मतलब यह है कि कुरान को समझा, सीखा और सिखाया जाए, इसकी तिलावत को ध्यान से किया जाए, इस पर अमल किया जाए और इसके बारे में बेबुनियाद तहरीफात को दूर किया जाए।
اور रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नसीहत का मतलब यह है कि आप अलैहिस्सलाम की इज्जत की जाए, आपकी हिमायत की जाए, आपकी सुन्नत को जिंदा किया जाए, आपके अक़वाल व अफ़आल की पैरवी की जाए और आपसे मोहब्बत की जाए और आपके पैरोकारों से यानी हज़रात सहाबा किराम से मोहब्बत की जाए। और मुसलमानों के अइम्मा की खैर खाई का मतलब यह है कि अइम्मा की मदद की जाए, उन्हें गफलत में आगाह किया जाए, उनकी गलतियों की इस्लाह की जाए और मुसलमानों में इत्तिहाद कायम रखा जाए। और सबसे बड़ी नसीहत उनकी यह है कि उनको जुल्म से रोका जाए। और आइम्मा मुज्तहिदीन की खैर खाई यह है कि उनकी तालीमात को फैलाया जाए, उनके नेक कामों को उजागर किया जाए और उनके बारे में अच्छा गुमान रखा जाए। और आम मुसलमानों की खैर खाई का मतलब यह है कि मुसलमानों के साथ हमदर्दी की जाए, उनकी मदद की जाए, उनको फायदा पहुंचाया जाए और उनको नुकसान से बचाया जाए और उनके लिए वही पसंद किया जाए जो आदमी अपने लिए पसंद करता है। यहाँ इस हदीस के तखरीज को जिक्र किया जा रहा है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को रिवायत करने में मुतफर्रिद हैं और इसको किताबुल ईमान में लाए हैं। इमाम नसाई, हुमैदी, इमाम अहमद बिन हम्बल, अबू अवाना, अबू नुआइम और दीगर हजरात भी इस हदीस को अपनी अपनी किताबों में रिवायत करते हैं। यहाँ इस हदीस से हासिल होने वाले चंद फवाइद का जिक्र है जिनमें से अक्सर का बयान तो हो चुका है। इस हदीस पाक के अंदाज से ये बात भी साबित होती है कि आप ऐसे अंदाज में किसी से खिताब करें कि सुनने वाला खुद सवाल करे तो ये भी जायज है। इससे बात की अहमियत को पैदा करना मकसूद होता है। इसी तरह इसकी सनद के ऊपर जब हमने बात की थी तो बताया था कि किस तरीके से रावी ने अपनी सनद को आली किया, तो पता चला कि सनद को आली करना ये भी सल्फ सालिहीन का महबूब अमल था। इस हदीस पाक से हासिल होने वाले फवाइद को इख्तिसार के साथ हमने इन सफ़हात की ज़ीनत बना दिया है। यहाँ भी चंद फवाइद को जिक्र किया गया है। 3 फवाइद इस सफ़े के अंदर मौजूद हैं और 2 फवाइद को यहाँ भी जिक्र किया गया है। यहाँ हमारा सबक मुकम्मल हो जाता है। एक नज़र खुलासे को देख लें। ये सबक से मुतालिक चंद सवालात हैं, इनके जवाब तहरीर करें। मिलते हैं नए सबक के साथ। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।